It's a very rare moment, especially for me. Today we have among us the famous theatre personality, at the same time my senior, Kabir Singh ji. Both were the alumni of National School Drama. He is very senior to me. As Bappi ji told me, he actually, thank God you are concentrating on mostly stagecraft. Follow me? Which is one of the, I think, और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई. मैं बातें लेक्चर कम दूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा तो आप पूछिएगा ताकि मैं कम्युनिकेट कर सकूं. सो मैं थिएटर में समझता हूं it's a composed of 4 things. First, on stage, backstage, and before stage. There are 3 components. And one, behind the backstage, very important, is the author, the play. So through these process, a play is a production takes place. For example, if a play idea strikes me as a writer, so he chooses the media. You will be knowing that many great people in theatre, writer as well as director. Very few were writers were directors. Very few. Chekhov was never director. Even Alkazi Saab was never writer. Mohan Rakesh was never director. Andha Yug ke Bharti Saab was never a director. But they had the sense of theatre. So they wrote the play and somebody else. A very few examples can be quoted where all things combined together. A man is a writer as well as director. From my point of view, I am telling my impression over theatre. And they are not Bharat Vakya. Don't take for them granted. You test it. I tell you my experience. So you may take or disagree with you. So beautiful. And disagreement takes you somewhere. So now a writer takes a theme. He wanted to interpret it. He chooses the medium. Sometimes he feels that this idea can be expressed only through short story. Sometimes he feels it can be interpreted, communicated only through poetry. Some feel that it can be interpreted through this. For example, I take you must have heard about Chekhov and all this. Or Chekhov Saab, he was one of the, I think, most beautiful short story writer ever. He wrote the play, so he chose the medium play, not poetry. Certain idea he put in the through play. Halanki his play is a poetry itself, impressionistic, a new style. Stanislavski interpreted. Initially also he misunderstood. He wanted to present it as one style. Stanislavski was a very big man, theoretician, so the method system, as you know, all that. But he took, after a failure of Seagull, then he realized that to interpret Chekhov, he has to have a different approach. So from my point of view, content dictates the form, not the vice versa. बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि we choose the content and we want to search that
I mean, you think of a play, you want to expect it, then that play, your theme, gives you form, makes you think of a form. है ना? हम फॉर्म पहले ढूंढ लेते हैं. We are fascinated by some form. For example, I had been in Bengal, I might be influenced by Yatra or Maharashtra, Tamasha. I want to put that theme, even Dogri. That is not idea. As far as myself go, I always tried and believe in this principle that it is the content which dictates the form. So ये तीन चीज़ें थी. अब स्टेज डायरेक्शन में वो आ जाता है ये सारी चीज़ें. He must have a knowledge, if not mastery, but a little knowledge of everything. Say stagecraft, say music, and a sixth sense of interpreting the things. He is not a writer. For me, director is a simply creative interpreter of the idea. कई बार ये हुआ है. Some people murder the play on behalf of. If they want to do the play their own way, write a new play. You are interpreting the play, and creatively. For this, you choose the forms. As far as these crafts go, all these crafts, say architecture, mask making, stage designing, set designing, makeup, lighting, they are component and help and aid to interpret the idea. They are not end in themselves. मेरी बात समझ रहे ना? They are not end in themselves. I am not belittling your efforts, but you must know they are tools. A director needs a tool to communicate. I don't believe in theatre. ये आया theatre of cruelty, theatre of physical theatre, falana theatre of silence, theatre of absurdity, and all this. There is only one theatre. A sensible theatre, a non-sensible theatre. A theatre from here to there. मैं बहुत प्ले देखे हैं जो जितने समझ नहीं आए उतनी कमाल थे. मॉडर्न आर्ट बना दिया. मैं थिएटर को मॉडर्न आर्ट नहीं बनता. Communication is a must. The most important element in theatre and most difficult to grasp that is the communication. मेरे प्ले साथ भी हुआ है जहाँ मैंने जगलरी की. कईयों ने कहा कि जी आपका प्ले देखो बड़ा मज़ा है, कमाल, आप बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर समझ नहीं आया. जब उन्होंने ये कहा, मैं ले गया, ललित मगोत्रा थे जो आए थे. मैंने कहा इधर आइए, समझ मुझे भी नहीं आया और मैं समझ राइटर साहब को भी नहीं. आदि रंगाचार्य का प्ले था. मैं घबरा गया था. ये एकेडमी की प्रोडक्शन थी, पैसे इन्वॉल्व थे, पैसे मतलब थोड़ी देते थे, और जो हम स्टूडेंट्स होते थे उनके चाय पानी का. वो बाद में जाके मैं घबराता गया, मुझे समझ नहीं आई. उन दिनों मुझे जहन में ये वहम था कि डायरेक्टर जो है वो साबित नहीं होना चाहिए एक्टरों को कि इसको ऑल नोइंग नहीं है. मैं कभी डायरेक्टर सलाह नहीं लेनी. क्यों लें? मैं डायरेक्टर हूँ. एक्टर कौन होता है? मैं घबरा गया. मैंने एक्टरों से भी सलाह ली, वो भी कंफ्यूज हुए. फिर मैंने उस कंफ्यूजन में क्या किया, उल जुलूल किया. कभी इधर से हाल से. उन दिनों गुलाब भवन होता, काश आपने देखा होता. आपने किसी ने नहीं देखा गुलाब भवन? ये ये लगती है, सेल लगती है, वो देखा है? जो भी देखा मैंने किया वहाँ पे, और पगला घोड़ा जैसा किया है. और इन दास गुप्ता कहते तुमने किया कैसे इधर? वो स्टेज 6 इंच की स्लोप दी गई है
7 इंच 8 इंच की पक्की स्टेज, सीमेंटेड स्टेज की बात कर रहा हूँ, ताकि फिसलें वो। हॉल बिल्कुल फ्लैट है, फोल्डिंग चेयर है स्टील। कमरे जो मेकअप रूम में एक में घुस गए तो दूसरे में जा ही नहीं सकते। कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप कील नहीं लगा सकते। डांसर परफॉर्म करने आते थे, वो कहते किसने डिज़ाइन किया है, हम नाचेंगे कैसे, वो स्लिप कर जाती थी। उन जगहों में थिएटर करना बड़ा मुश्किल था। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, उन गलतियों की बता रहा हूँ। इसलिए मैंने उस थिएटर में ही क्या किया कि लाइटें कभी इधर से आई, एंट्री उधर से हॉल से आ गई, सारा कुछ। मैं घबरा गया था। तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ। बाद में मुझे आया डोंट फूल द ऑडियंस, नेवर। ऑडियंस वर नॉट फूल एट दैट टाइम, नाउ दे आर सर्टेनली नॉट। It is we lack the communication and we blame the audience. When I came, many people discouraged me to do something new. I never did a thing for the sake of getting cheap experimental. आज तो हर प्ले है जी, समझ नहीं आया एक्सपेरिमेंटल। हाँ भाई, एक्सपेरिमेंटल क्यों होंदा यार, जी गल समझ के नहीं आ, वो एक्सपेरिमेंटल किस गल्ला दी हुई। एक शेर है, मुसव्वर ने माशूक का नकूश बना रखा था, मैंने समझा तिपाही पे घड़ा रखा है। ठीक है ना। और हमारे पास वो है राजा नंगा का है, एम्परर क्लोथ्स, पढ़िए वो शॉर्ट स्टोरी, प्ले भी शायद इन्होंने किया है या मैं भी लिखा है वो। हमें जरूरत नहीं कहने की कि किंग इज नेक्ड, ही इज नेक्ड। ए स्मॉल चाइल्ड से किंग इज नेक्ड। क्यों बेवकूफ़ बनाते हो। एक बार मैंने पैसे कमाने के लिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी बहुरंगी, उससे नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसका ध्येय या एम्स क्या थे कि नो गेस्ट, नाइट चीफ गेस्ट। आजकल इतने गेस्ट हो गए, समझ नहीं आता कौन सा गेस्ट है। एक साइड गेस्ट है, एक लेफ्ट गेस्ट है, एक प्रधान गेस्ट है, एक प्रिजाइड ओवर गेस्ट है, और सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनको कुछ नहीं समझ आ रही, और उनके चिमटे साथ में आए। उन्होंने क्या थिएटर समझना यार। थिएटर में चीफ गेस्ट की किसको ज़रूरत है। हाँ, मेरे चीफ गेस्ट हैं, और मैंने कभी नहीं, बहुरंगी में कसम खाई थी कि कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा, और था भी नहीं। फिर एक दूसरा किया कि बगैर टिकट नहीं प्ले करना। उसमें 2 फायदे थे और नुकसान भी थे। एक तो टिकट जब आप खरीदेंगे, नहीं तो तरले करने पड़ते थे। वो साडा प्ले दिखन आई हो जी, वो आए थी, हाँ कैसा सी, ठीक है, हाँ ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई ठीक है, ठीक है। अगर हमने पैसा रुपया खर्चा है, 1 रुपया भी टिकट रखी थी हमने, 1 रुपया। आई एम टॉकिंग ऑफ 69। कास्मो होटल से परचेज़ करिए, वहाँ से परचेज़ करिए। उनको मैंने कहा कि ये इससे क्या होगा कि देखने वाला जब उसने 1 रुपया या 2 रुपये खर्चे होंगे तो वो कुछ आएगा देखने, है ना। और जब वो आएगा वो 2 रुपये वसूल करना चाहेगा, और हमारी लायबिलिटी बनेगी, यार हमने पैसे लिए देने हैं। और तीसरा, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। मुझे ताज्जुब है और अफसोस है कि अब सब स्पॉन्सर हो रहे हैं। यार टैलेंट कहाँ स्पॉन्सर होते हैं, स्पॉन्सर नहीं होता। कईयों ने मार खाई है, पप्पी साहब ने भी खाई होगी, औरों ने भी खाई। मेरे से भी बहुत महान लोग हुए जिन्होंने थिएटर को दिया है। आज ये थिएटर से लेने ही लेने आ रहे हैं। कभी मैं आप सोचता हूँ इस उम्र में कि मैंने थिएटर को कुछ दिया या मैंने लिया ही दिया। एक थिएटर इज आर्ट, उसको कहीं ना कहीं आर्ट मान के चलिए, और उसके लिए मुसीबत करिए। एक जुनून है, एक पागलपन है। पागलपन जब तक आप वो नहीं है आपके पास, आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते।
मुझे एक नशा है, एक ऐसी अर्ज होती है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो नहीं जाती। अब गलत क्या हो रहा है, चैनलाइज गलत हो रहे हैं। और मैं एक बड़ी बेसिक बात बताऊं जो आप जानते हैं कि टैलेंट इज़ अ गॉड गिफ्टेड। नो स्कूल, नो टीचर कैन गिव यू टैलेंट, ए गॉड गिफ्ट है। कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर उस टैलेंट को एक्सप्लोर करना सिखाता है आपको, उसको यूटिलाइज करना आता है। थैंक गॉड देयर इज नो स्कूल वेयर पोइट्री टॉट। आजकल खुल गया है। पोइट्री अगर सिखाई जाती तो मेरे ख्याल धर्मवीर भारती बना होते। कीट्स को किसने पोइट्री सिखाई? हाँ, ये जितने महान कवि हुए हैं इनको अगर स्कूल में भेजा जाता, वो पोइट्स बन जाते तो फिर तो बड़ी आसान सी चीज़ है। थिएटर की टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो वाकई सीखने की बात है। मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे पास भी टैलेंट था, तभी तो मैं सिलेक्ट हुआ और तभी तो मैंने मुसीबतें भी उठाई और वो उन्होंने पॉलिश किया। मैंने अलकाजी साहब या अदर कारण सभी से सब कुछ सीखा। और फिर ट्रेजेडी हुई कि जब सरकारी नौकरी बन गया ना मुलाजिम, तो बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ा। मुझे दिया गया ये गुलाब भवन जिसमें कील नहीं लग सकती थी, जिसमें स्लोप ऐसे है, आप घुस गए पगला घोड़ा। हमने बपी साहब यकीन जानिए लाइट नहीं लगते थे हम, स्टील की वले लगी, एक लाइट लगाना कहाँ डिंकी कहाँ वो छोड़िए, ये कमाल। ये तो बहुत बाद में बना। मैंने प्ले भी वहाँ वही चूज़ किए जो वहाँ फिट आते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद आपने प्ले पढ़ा होगा विजय तेंदुलकर का ये नाम खामोश दाड़ेदारी। यस, उसमें पहले ही वो आता है, एंट्री देता है, ये हाल है, इसमें कीर्तन भी होता है, ये होता है। मैंने कहा यही है गुलाब हाई समझ। मैंने वो उसको ऐसे ही किया यही है, तो ये बना के और वो टेबल उल्टे सीधे रखे और जो भी आए पहले कांग्रेचुलेशन का आदत होती है ना बेवकूफ़ी, बाद में करो यार। तो वो आ जाते थे, वो टेबल हमारे इधर कर देते थे। उनको समझ ना आए यार ये पर्दा नहीं लगा है, कुछ नहीं है, ये कर क्या रहे हैं, प्ले है भी कि नहीं। सो मैं वहाँ चूज़ करता रहा। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि ये स्टेज क्राफ्ट सारे अपने आपकी एड है। म्यूज़िक बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है। आपको समझ आना चाहिए क्यों। रियल लाइफ में तो म्यूज़िक नहीं है। कोई मरता है तो आप म्यूज़िक बन जाते हैं, या कोई डेथ होती है या मरता है उसमें ग्लिसरीन तो लगाने ना पड़ती और उसमें बंसरी बजा के या वायलिन करके वो दर्द तो नहीं ना पैदा करनी पड़ती। हम ये ऐसे करते हैं म्यूज़िक कि वो चीज़ पैदा हो जो फीलिंग नहीं है, क्योंकि थिएटर इज़ नॉट ए रियलिटी। यू नो दैट यू आर इन द हॉल। चालाकी आपकी ये है कि आपने कहना नहीं हाल में नहीं है, आप इस आदमी के साथ हैं। अब मैं ब्रेख्त की थ्योरी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एंटीथीसिस थी, वो महान कवि थे, महान लेखक थे, मगर ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं। और स्टेज सेट भी वो सेट क्या है जिसे देख के कहीं यार सेट कमाल है, हाय 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 हाय, वो मेकअप कमाल है यार। संजीव कुमार ने कितने मेकअप किए और बुढ़ा बनता रहा। ही वॉज अ ट्रेमेंडस एक्टर, वेरी गुड एक्टर। आपने शंभू मित्र जी नहीं देखे हैं, आपने ये नहीं देखे हैं दादा क्या नाम उत्पल दत्त, मैंने देखे हैं। वो कैरेक्टर करते थे। इसलिए मुझे लगता है एक अजीब सा बैलेंस है। मुझे प्ले वो हमेशा गलत लगा जिसमें आके वो कह जाए हमारा म्यूज़िक कमाल है थोड़े प्ले का। मैं कहता हूँ कि वो म्यूज़िक ही गलत था। प्ले ऐसा होना चाहिए कोई पता न लगे यार कहाँ क्या कौन सी चीज़ कमाल थी।
कौन सी चीज़ कमाल थी, इस तरह मिक्स होना चाहिए। एक चीज़ पॉइंट तो हो गई, इसका मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा थी, वो बाकी चीज़ों को छोड़ गई। इसलिए ये एयर करना ज़रूर करिए, मगर उसको समझिए कि कहाँ तक करना है। और हमेशा टेम्पटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायरेक्टर है, उसको म्यूज़िक का बहुत ज्ञान है, तो वो कोशिश करेगा वो ज़्यादा डालने की। अब मैंने एक प्ले किया जस्मा, ये गुजराती फॉर्म में शांता गांधी जी ने लिखा था, उन्होंने किया था, फोक फॉर्म में है भवाई। उसका मैंने वो उसमें मैं रंगला बना था पहला, तो वो उसमें कमाल था। वो अलकाजी साहब का अपना वेस्टर्न स्टाइल था, बड़ा परफेक्ट, ये वो फोक था। तो वो मैंने देखा, उसमें किया भी। तो उसमें क्या हुआ, जब मैं आया यहाँ पे तो मुझे मेरे दिमाग में रहा कि ये मैं प्ले ज़रूर करूँगा, और मैंने उसमें प्ले में किया था और मुझे उससे खूबी काम है। और एक्चुअली वो प्ले मैंने गुजराती में देखा, वो कोई मंडल था, शांता गांधी वहाँ ले गई। मैं थोड़ा तबला बजा रहा तो वो समझती थी बड़ा अच्छा बजाता है, इतना अच्छा मैं कुछ नहीं बजाता था, फाड़ कर बजाने नहीं, भंगड़ा टाइप का ही नहीं आता था, तो ऐसे ऐसे शुरू हो जाता था। वो ले गई, वहाँ मैंने देखा तो मैंने कहा यार फाड़ू नहीं कमाल है, ये आज एक्टर ये भी कर सकता है, एक्टर ये भी कर सकते हैं, ये भी। मैंने मैडम को सजेस्ट किया, मैडम इसे आप हिंदी में क्यों नहीं करवाते। मैडम मान गई, अपनी किस्म की थी। मुझे उसमें रंगड़ा रोल मिला करने का, वो बड़े करेक्टर करता है। खैर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब वो मैंने किया तो मैंने कहा यार ये तो प्ले डोगरी में हो सकता है। मैंने डोगरी में जितने भी प्ले किए हैं वो ऑलमोस्ट अडॉप्शन है, क्योंकि कश्मीरी में आप शेक्सपियर मत करिए, ए डेस्टोमोना तू चुकुसा गुलजान पई त्रट, है कि नहीं। इसी तरह डोगरी में अफीलिया फिर मुँह तेरा, ख़त्म हो गई। यार कैसे करोगे शेक्सपियर को ट्रांसलेशन, बहुत मुश्किल है ही नहीं। आदि रंगाचार्य साहब ने किया, अमिताभ बच्चन साहब ने किया, किसी का भी अच्छा नहीं हुआ है। अडॉप्ट करिए आप, फिल्मों में किया गया है। शेक्सपियर सच ए डेंजरस आर्टिस्ट। इसलिए मैं जब डोगरी में करने पे आया तो मेरा काम डोगरी फैलाने का नहीं था। मैंने पहले शुरू में सोच लिया कि मैंने डोगरी में कहानियाँ लिखी हैं, प्ले भी लिखे हैं, बकवास भी किया है, शायद मैं डोगरी में सोचता हूँ, वो बात अलग है। मगर मैं डोगरी में वो प्ले करना चाहता था जो डोगरी का लगे। इसलिए इवन ट्रांसलेशन किए, जैसे हमने किया शुतुरमुर्ग, ऐसे शिवराम दीप थे, उन्होंने उसको कराया, मैं भी साथ में बैठ जाता था। फिर मैं कहता था ट्रांसलेशन भूल जाओ, अब इसको वो डोगरी का सेंस पकड़ो। मेरे पे इल्ज़ाम भी लगता रहा कि ये डोगरी स्नॉबिश है, बाहर आया ट्रेनिंग करिए, इसको पहले अपना कल्चर नहीं उभारता, फलाना नहीं उभारता। यार मैं प्रचारक हूँ ड्रामे का, मैं आपका वो लैंग्वेज प्रचारक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ड्रामा देख के या किसी का ड्रामा देख के आदमी दोबारा आए। आई समझ। तो उसमें क्या हुआ, जब मैं जस्मा करने लगा फिर मैंने सारे एलिमेंट लिए जितने भी अवेलेबल थे। हमारे यहाँ पाख है, गीतड़ू है, ढोल है, और सारा म्यूज़िक जो था अपने इंस्ट्रूमेंट लिए। वायलिन लिया, वो भी साउंड इफेक्ट्स के लिए, या कोई मुंडाइया सीन थे या माइन में कोई सीन थे उसके लिए। और उसमें यकीन जानिए 6 म्यूज़िक डायरेक्टर थे। आज तो मैं सारे अपनी अपनी फील्ड से, उनसे काम लेना बहुत मुश्किल होता है। हर म्यूज़िक डायरेक्टर या हर आर्टिस्ट वाला सेंसिटिव होता है, उनके साथ एक रिपोर्ट कायम करना पड़ता है कि वो मेरी बात समझें और किसी तरीके से अपनी बात समझा देनी है उनको। फिर उसमें 3 डिपार्टमेंट थे, एक म्यूज़िक था, एक डांस था, एक ड्रामा था। ड्रामे का मुझे कंट्रोल था,
मैं म्यूज़िक समझता हूँ, ताल मुझे आता है, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ। वो उसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ी 6 म्यूज़िक डायरेक्टर की। फिर मैं डांस कर लेता हूँ, रिदम है पाँव में, मगर मैं डांसर थोड़ा हूँ, सिखा नहीं सकता, कोरियोग्राफर नहीं हूँ। मैं बंसी डोगरा थे यहाँ पे, वो ट्रेन थे कोरियोग्राफर बाहर, उनकी मदद ली। अब पता क्या हुआ, वो हर एक की टेम्पटेशन होती है मेरा म्यूज़िक उभर के आए। डांसर की टेम्पटेशन थी कोरियोग्राफी, मेरा डांस उभर के आए। मैं ये ताड़ गया और मैंने कहा कि ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ब्लेंड हों, हाईलाइट ना हो। और लकली हुआ और उसमें मैं सारे एलिमेंट जो नहीं थे, ट्यून ने सारी फोक बनाई। कोई फिल्मी ट्यून आती थी ना, पाड़ जाते थे, लड़कियां थी तो वो बड़े छानी, मैं कहा ये उस फिल्म से मिलता नहीं। हाँ, प्रद्युमन सिंह थे, मर गए बट बड़े, वो फोक के बड़े थे माहिर। मैंने उनका कहा कोई ट्यून एक तो दूसरे से नहीं मिलनी चाहिए, तुम जो मर्जी करो, फोक ले आओ। वो किया और आपको ताज्जुब होगा, उस प्ले को हमने गुलाब भवन में किया। मजबूरी थी क्योंकि लोग वहाँ तब भी सबोटाज करने वाले थे, आई ना समझ, मजबूरी में किया। उस गुलाब भवन में पूरा गांव का क्रिएट किया, मिट्टी, वो मोटिव, वो काऊ डंग सारा लगाया और एंट्री हॉल के बीच में से आई। मगर मुझे मालूम था कि ये प्ले ओपन एयर के लिए है। फिर हम एग्जीबिशन ग्राउंड जो आपने देखी है ना, वहाँ पे था, और जो बंड है ना उसको इस्तेमाल किया, वहाँ से बारात आती थी, कैन यू इमेजिन। और वो घोड़ा लाया, बैंड वाले जो फटे थे उनकी शक्लें भी बैंड वाली जैसी थी, वो ढूंढे बिल्कुल। वो कहे नहीं हमारे पास अच्छी वर्दी है, ना यही चाहिए। फिर टेंग साहब उन दिनों सेक्रेटरी थे, उनको भी पसंद आया, लोगों ने पसंद किया। मैं खुद नहीं कहता, लोग कहते कि 30,000 आदमियों ने देखा, जहाँ से उनको समझ नहीं आए हो क्या रहा है। और पास ही एक ठेका था, समझाए, पुल में, वो बहुत से लोग पी के चले आए। वो बारात में वो भी शामिल हुए, उनके धक्के देने के बाद नहीं, उनको मज़ा आया, उनको बड़ा मज़ा आया। सिमिलरली देन दे डिसाइडेड कि ये प्ले और जगह ले जाना चाहिए। सो 2 places वर सेलेक्टेड। उधमपुर, मैं उधमपुर की जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि वहाँ देखा कोई जगह ही नहीं। आप जिसने उधमपुर देखा होगा, वहाँ देव का है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। और हम रफ़ी साहब वहाँ कमाल है कि वो 40 बाई 40 है, 35 बाई 35 होगा स्क्वायर, सीमेंटेड है। बीच में पीपल का दरख्त है और इधर से चढ़ने का है। और पीपल के दरख्त में वो कड़ाटू फेंकते नहीं, आपको मालूम ही है, कड़ा करते हैं वो, और ढकिए स्टेयर, वहाँ से हिल्स है चारों ओर, और शमशान। मैंने वो जगह सेलेक्ट की। सारे कहे ये क्या हो रहा है, मुर्दे फूकते हैं, हाँ ये कौन सी चीज़ आ गई। और पीछे क्या था, क्रीपर थे, ग्रीन वॉल बनी हुई थी, जैसे बैकड्रॉप हो। हाँ, एक्टर उधर से छुप के एंट्री कर लेते थे। बाकी बारात उधर से आई, वो डकियों से लाई। हाँ, और फ्लड लाइट है और कोई म्यूज़िक लाइव नहीं है, वेरी रिस्की। कॉक पिच था, बनाया था ऑर्केस्ट्रा पिट, वहाँ मैं भी बैठा होता था, और भी जो वहाँ से लाइव म्यूज़िक चला, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और पहले तो लोग आए ना कि यार ये क्या है, वो सारे कहे पागल है कोई आया वहाँ, और वो क्रीपर यूज़ किए। और जब हम दिन को रिहर्सल करने लगे, वहाँ एक माए मुर्दा लेके, अब उन्होंने सारा कुछ उधर करना है। अब मैंने कहा इन्होंने सारी हमारी स्टेज ख़राब कर देनी है, ये गीली होगी, रात को करेंगे कैसे। हमने भी बड़े उदास बने, वो लकड़ी ली, हमने भी थोड़ी सी उनके साथ गए, उनसे रिक्वेस्ट किया
कि घड़ा यार थोड़ा सा इधर डाल, अब भी बैठ गए ऐसे। रात को जब शुरू हुआ, फिर वो उस पहाड़ियाँ जो हैं सराउंड में, उनमें लोग बैठे, वो घरों से देख रहे, समझ नहीं क्या वो कह रहा है। फिर लोग आते गए और फिर वो जमा, और वो जब बारात आई वहाँ से लोग, बाद में एक आदमी था, वो इतने पागल बने कि मैं भी छोटा सा रोल किया था, डोगरी बारात और शराबी ना हो। गलत बात है ना, गलत बात। तो वो छोटा, मुझे मालूम था कि मैंने रंगला नहीं करना है इसमें, वो बहुत मतलब मैं कर सकता था। मेरा एक भांजा था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, जो ये कहता है यार बंदे हैं क्या है, तुम खबरें लगाओ, मैं उस पर नाच के दिखाता हूँ, ये इनको नाच क्यों नहीं आता। उसको दिया, तो वो मैंने शराबी का किया। तो वो क्या करता है कि वो रखता है, तो अपनी जो चाय आती है डटनी गिलासों में, वो चाय इधर फेंकता है, उसमें गड़ के सेमियाँ खाता है। और वो एक जगह लड़ाई होती है, वो हवा में मुक्के चलाते रहते ऐसे कर। वो इतने इम्प्रेस हो, दो शराबी थे, वो बैठे रहे। अब हमने वो सारा सामान बांधना था और ले जाना था। दूसरे दिन हमने वाया धार रोड बसोली जाना था, और वहाँ भी लोकेशन ढूंढनी थी, वो अलग बात है। तो वो आए, और डॉक्टर पठानिया बेचारा मेजर जनरल रिटायर हुआ, डॉक्टर था, तो वेरी डेडिकेटेड मैन। तो वो बना था वो जो लंगड़ा। तो मैं डॉक्टर, मैं यार पठानिया चलो सामान पैक करते हैं, तो बाकी आर्टिस्टों को भेज दिया कि बाकी हम ये ले आते। वो आए, मैं क्यों नहीं, मैं नहीं, अब मन ही नहीं सकते, तो शराब पीती थी, मैं उतरी ही थोड़ी, उन्हें लाओ, ले आए हैं साथ में, लो। मैंने कसम खाई थी भाई टूर है, कभी मैंने प्रोफेशन जो किया ना स्टेज पे, कभी नहीं शराब पी, इस कैंपस में नहीं पी, कभी नहीं। शराब में पीता था, काफ़ी भी पी हो, उसमें कोई नहीं है, मगर मैं थिएटर में इसको अलग रखा। तो फिर पठानियों ने कसम खाई भाई ये नहीं पीता है, ये एक्टिंग करता है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो बेचारे उतरी है ये सारी। तो वो जो कम्युनिकेशन था ना, तो वो लगा कि हमने प्ले सक्सेस रहा। और एक बात याद रखिए, जब भी आपने प्ले करना है, यू मस्ट चूज, फाइंड आउट द लोकेशन यहाँ करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मैं शुरू से कह रहा हूँ वो प्रॉब्लम होता है। हर प्ले आप हर जगह नहीं कर सकते। आप वेटिंग फॉर गोदो, सैमुअल बेकेट का कईयों ने पढ़ा होगा, वो मैं गांव में ले जाऊंगा तो हवा में चला जाएगा, बड़ी बेवकूफ़ी करूंगा। आप छोछेबाजी करने के लिए जो मर्जी करिए। मैंने वेटिंग फॉर गोदो लेके आधे में छोड़ दिया। शुरू में यहाँ लड़कियों की बड़ी दिक्कत होती थी, वो प्ले बड़ा अच्छा लगता था जिसमें लड़की ही नहीं है, क्योंकि टैलेंटेड मिलती ही नहीं थी। मुझे बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी जब वो कहते हैं जी असें ड्रामे पर स्टेजा पर नहीं चाड़नी कुड़ी, अपनी कुड़ी का ब्याह करना है। मेरा ब्याह बड़ी मुश्किल से हुआ। हाँ, इल्ज़ाम था कि ड्रामे करता है ये। तो वो छोड़ दिया बेकेट का प्ले इसलिए कि ये किसके लिए है। और जब हम पढ़ते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, ओम शिवपुरी, ये अपने मोहन महर्षि और ये एक राम कुमार बजाज वगैरह, इन्होंने किया वो वेटिंग गोदो एज ए स्कूल, एज ए एक्सरसाइज इज फाइन, बट द सेंसिबिलिटी ऑफ द वेटिंग गोदो और थीम ऑफ द गोदो, निहिलिज्म, सिसिफस थ्योरी, एब्सर्डिटी, ये हमारे ध्यान में नहीं है। हमारी ज़िंदगी की तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बहुत सी कंट्री हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका प्रॉब्लम है कि क्या ज़िंदगी क्या है। आपने बगैर शादी किए एक औरत से रह सकते हैं, बच्चे स्टेट प्रॉपर्टी हो जाते हैं। कहाँ से आ गए?
हमारे हिंदुस्तानी को बेचारे को एक मकान बनाने में सारी वो रह जाती, उसको अपसेटिटी कहाँ समझ आएगी कि ज़िंदगी क्या माने हैं। ये टिपिकल वेस्टर्न कल्चर का था, 2 वर्ल्ड वॉर की, इसलिए अब मैंने थ्योरी में जाऊंगा, तो उसकी प्रोडक्ट थी। इसलिए मैंने हमेशा जब प्ले चुना कम्युनिकेशन के लिए चुना। हाँ, मैं अपना एक स्टाइल नहीं बनाया। पीपल कांट से कि ये मतलब करता था प्ले फिजिकल दूसरे। मैंने संस्कृत में प्ले किए हैं, भाई समझ। मैंने चॉइस ऑफ प्ले देख लीजिए, मैंने एक से अलग किए। थैंक यू मिस्टर गड़ा बिल्कुल अलग किस्म का था, पगला घोड़ा बिल्कुल अलग किस्म का था, भगवत अच्युत में बिल्कुल अलग किस्म का था। संस्कृत है, और वो संस्कृत की भारतनाट्य थ्योरी से किया, जिसमें माइम ज़्यादा है, अभिनय से 17-18 सफ़े का है। अब ये प्ले का नाम भगवत अच्युत 20 का होगा, घंटे का बना, और उसमें यमदूत भी आता है और ये भी है। फिर मैं रियलिस्टिक में भी आया, फिर मैंने वो किया। आखिर में एक ऐसे प्ले के जिसमें अमन साहब भी थे, कहानी हमारी तुम्हारी, वो थर्स्ट की थीम दी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट पे। वो बेस बन जाता है गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट। कैन यू इमेजिन कि प्री इंडिपेंडेंट मतलब 57 से पहले वो जो मूवमेंट थी, सन्यासी मूवमेंट आनंद मठ की, वहाँ से शुरू करके गांधी जी के असैसिनेशन तक लाया, और 1.5 घंटे में। और कितनी करंट्स हैं, टेररिस्ट की है मूवमेंट है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, कौन कौन नहीं है। लोग कहें बेशक कहें कि गांधी जी ने आखिर में कड़छी मारी, पर उसने अपनी किस्म की कड़छी मारी, जो आजकल मिलिटेंट भी अपना रहे हैं कि भूख हड़ताल कर लो मिलिटेंट कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था। ही वॉज वन ऑफ द एक्टर, जिनको पता है कितनी मेहनत हमने की, और उसमें हर एक टेक्निक यूज़ की मैंने। शैडो प्ले कभी नहीं किए थे मैंने। आई समझ स्लाइड दीवार पे आ जाती थी, हर उस शख्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो उससे हो जाती थी। फिर नरेशन थी, ब्यूटीफुल पोइट्री, और लिखने वाला कोई नहीं, किसी कोई माने ही ना, वो लिखा। और वो जब सक्सेसफुल हुआ, मैंने एक दिन मॉर्निंग को शो रखा था, वुमेन कॉलेज की लड़कियां आई थी गांधीनगर की। मैंने छोटा सा जुलूस में आता था, 4 जुलूस होते थे, तो मैं साइड पे खड़ा होके एक लड़की को पूछा कि ये आपको प्ले अच्छा लगा? कहती हाँ। मैं समझ आया, कर ली हाँ, मैं बिल्कुल, कहती हाँ, बात बन गई। वो भी एक्सपेरिमेंट था। कहीं उन्हें कहा जी ये प्ले क्या बनाया, फलाना क्या है, हद है, इसने ये भी यूज़ किया, ये वो। एक ने कहा सांबर क्या है, एक क्रिटिक थे कहते हैं सांबर, लिखा भी उन्होंने, वो मुझे मिले। मैंने कहा मैं एक तो पहली तो बात ये है कि ये मैंने प्ले नहीं कहा, मैंने लिखा है ब्रोशर में ही, इसे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, स्टोरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। So who says कि it's a drama in proper form? इसे that है ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। उसके लिए मैंने सारा कुछ जो उसने क्या किया क्रिटिक ने कि ये सांबर है। और मेरे कुछ प्ले थे, जुलूस था, ये जो बादल सरकार का जो क्वार्टर मतलब स्ट्रीट प्ले है, सबसे पहला स्ट्रीट प्ले वो है जो लिटरेरी लेवल पे कमाल है। हाशमी साहब ने भी किए, वो भी मैंने किए। अब तो एक प्रोपेगेंडा हो गया स्ट्रीट प्ले करना। हर आदमी आजकल संडे थिएटर, मंडे थिएटर, ट्यूसडे थिएटर, 8 दिन भी नहीं पूरे पड़ रहे हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं किया। हाँ, एवं इंद्रजीत मैंने देखा, मुझे वो आपसे अलग से भी बात हो सकती है कि ये मुक्तांगन बादलदार ने क्या किया है, वो हर चीज़ उसमें डालते गए।
और बेसिकली उनका एक फ़िलासफ़ी थी। और ड्रामे में फ़िलासफ़ी जब लाओ ना, अब शेक्सपियर की कौन सी फ़िलासफ़ी है? दैट टॉक ऑफ नेचर। ठीक है, पॉलिटिकल थे, हर जगह वो थ्योरी ऑफ सिस्टम आना चाहते थे और कंफ्यूज कर देता है। बाकी इतिहास मैंने किया, वो जिसने सारी हिस्ट्री पढ़ी हो उसको समझ आ सकता है। इन्होंने डोगरी में लगाया, मैं पढ़ाना मैंने इनकार कर दिया। अब किसको पता है सिसिथस की थ्योरी? सो उनकी मुझे सबसे पसंद जो आया मिस्टर गल्पी कहानी, कौन सी, पगला घोड़ा की। उसने वो जो उन्होंने लाया ना अब्सर्डिटी की, मैं आस्ता हटा गया। दैट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल प्ले एंड पीपल स्टिल रिमेंबर। तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, पगला घोड़ा किया। और पगला घोड़ा में मुझे बड़ी अच्छी कम्प्लीमेंट मिला। मैं अपनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि अपनी नहीं कर रहा हूँ, बाकियों की भी। एज ए डायरेक्टर क्या हुआ, हम 4 आदमी थे, 4 हैं आदमी। और शमशान में एक लड़की को जलाए आए हैं। वो लड़की, उनको कोई रिश्तेदार नहीं, शराब की बोतलें 2 ले आए हैं, ताश ले हैं गड्डी खेल के, और चिता जला रहे हैं। वो चिता से उठ के कोई लड़की आती है जो इनविजिबल है, उनको खरोचती है, बताओ तुम्हारी कहानी क्या है? और सारों की आपस में जुड़ी हुई है कहानी, आई ना समझ? सारों उन 4 ने अपनी वो खो बैठे हैं औरतें, और सभी के ट्रेजेडी में एंड हुआ है। और वो इतना मुश्किल प्ले था कि वो बात करते करते वो आगे कटोचती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई, तुम्हारी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, उसका बोलो, उसका बोलो। वो बाकी को अनविजिबल है, यू नो दैट। अब वो चले जाते हैं फास्ट टेंस में और शराब की बोतल चढ़ती है। अब प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी क्या हुई कि जब वो उसी सीन पे आ जाते हैं, यहाँ वो ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तब वो शराब में है। और जब वो पास्ट टेंस में चलते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। वही टोन, वही लेवल, वही नोट पकड़ना शराब का कितना मुश्किल है। और फिर जिन्होंने नहीं पता है, पी है, उनको भी पता होना चाहिए, मुझे तो पता ही है। शराब चढ़ती चढ़ती आप आधा पीजिए तो कितनी चढ़ जाती है, फिर इतना पीजिए तो कितनी चढ़ जाती है। एक्टरों को ये मुश्किल आ रही थी, बड़ी मुश्किल से किया। और क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, मैं एज ए एक्टर अच्छा गिना गया था यूनिवर्सिटी में, मगर बहुतों कम को पता है कि मैंने प्ले जहाँ जितने भी किए, जिसमें पार्ट किया, मजबूरी में किया, नहीं मिला। आखिर फूक दी या मैंने समझा मैं रोल कर पाता। उसमें भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे भी एक रोल करना पड़ा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ये हुआ, वो भी फिर गुलाब भवन में, समझ गए आप? वो फ्लैशबैक, वो लड़की आ रही है और फिर वो लाइटें, वो वहाँ सिंक्रोनाइजेशन, कुत्ते की साउंड रिकॉर्डेड भी था। एक एक्टर था, वो कुत्ता बड़ा बढ़िया भौंकता था, वो रिकॉर्ड में पूरा ठीक नहीं आ सकती, सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं, वो विंग में पूरा ठीक है, थल इतनी जगह में किया। वो कॉम्प्लीमेंट ये मर कि यहाँ एक शायर थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, जंदराइया, केड़ा पला, कुलदीप सिंह जराए, वो मेरे पास है, प्रोफेसर थे, वो खुद भी पीती थी, उन्होंने भी पी थी। मुझे आ गया था, कहते मज़ा ही है, मज़ा ही है, पर पता नहीं लगा थोड़े टोने का केड़ा ज़्यादा अच्छा कर रहा है। वो कॉम्प्लीमेंट था मुझे एज ए डायरेक्टर, क्योंकि बाकी सारे मेरे स्टूडेंट हैं, बट आई मेड देम टू कम टू माई स्टैंडर्ड। I didn't load on my standard, but I made them to come. That way they compliment me as a director. अब मैं डायरेक्टर आजमा कौन है मुझे पूछने वाला, मैं अपना रोल हाईलाइट करता। बाद में मैंने कहा एक वो आदमी था जिसने सबसे सटल रोल किया, वो था विजय ब्रोल। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं आपको बोर नहीं करना, हंसाने भी आया हूँ, फिर मैंने एग्जॉस्ट हो जाना, फिर आपने सवाल पूछने। उसमें हुआ क्या कि वो शराब की बोतलें, मेरी बीवी थी, वो भी थिएटर से थोड़ा वास्ता रखती थी, मेरी स्टूडेंट भी थी, तो हम किराए के मकान पे रहते थे। उन दिनों टेलीफोन, मोबाइल वगैरह नहीं थे। टिकट बोले रेपुटेशन इतनी हो गई थी अकेडमी की, वो
कि वो टिकट पे, मतलब टिकट नहीं, इनविटेशन पे था। अकेडमी की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, ये सरकारी है। अब अगर टेंग साहब या ये कोई चीफ गेस्ट बुला ले आए तो बुला ले आए, मैं क्या करता, बहुत रंगीन नहीं कर सकता था। तो शुक्र करो वो उन्होंने रखे थे कार्ड, वो इतना रश पड़ा और एक ही गेट था। मैंने बीवी को कहा था देखो फर्स्ट क्लास कहवा बनाना है, उसमें इलायची वाची और खुशबू डाल देना, ठंडा ठार मज़ा आए, ठीक है। वो बीवी आई नहीं, प्ले शुरू होने वाला है, बीवी भी में हम कितनी गालियाँ निकालो मन में, अब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, समझ नहीं आया। एक रवि था, मैं रवि ये काम कर यार। गुलाब भवन ने सामने एक ढाबा था जहाँ रेडी लगती थी, वो चाय बेचता था, मैं कावल ले आया फटाफट, वो बड़ा तेज़ लड़का था, वो ले आया और गरम गरम बोतलों में डाल के, और आप सोच नहीं सकते वो कावा क्या था। अच्छा जब हम खोलते हैं ना बोतल, अब बाकी तो सारा कुछ कर लिया, वो धुआं निकले। अब कौन सी शराब है जिसमें से धुआं निकलता है? मैंने बड़ी पी है नहीं है। अच्छा वो मैंने ही बोलना था, वो पी कर आहा, जो विस्की है वो विस्की होती है। और मेरे से जान निकल रही है। मैं बीवी को बाद में पता लगा बीवी सब कुछ लेके आई है, उसको घुसने नहीं दिया। इतना रास्ता, फिर किसी ने कहा, वो चिल्लाए कि उनका प्ले करते प्ले शुरू हो गया। फिर जाके जब मुझे पता लगा, मुझे बड़ी हंसी आई। ऐसी भी होती है, बैक स्टेज स्टोरी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो ऑडियंस को नहीं होती है और ऑडियंस को होनी भी नहीं चाहिए। आपने प्ले अच्छा किया ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि एक्टर मैंने कर लिया था, इसको माफ़ कर दीजिए बीमार था, इसने डाला नहीं, माफ़ करिए ये मेरा भतीजा है, माफ़ करिए ये मेरी बीवी है, इसको इसका क्रिटिसाइज नहीं करना। ये थोड़ा ही होता है, वो हमारे प्रॉब्लम है, ऑडियंस के नहीं है। दे वांट टू सी एंड प्रोडक्ट, दे डोंट नो व्हाट पेन वी हैव गॉन थ्रू। इवन रद्दी प्ले करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है ना। और इसी हाल में बहुत रद्दी प्ले भी हुए और बहुत अच्छे भी हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये याद रखिए, ये टेक्नरी सेकेंडरी चीज़ें, दे आर इंस्ट्रूमेंट, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीनिंग। ये आपका दिमाग है, कैसे इस्तेमाल करते हैं बस। थैंक यू मिस्टर गिलाड में, ये तो थिएटर देखा है मैंने, इसका वो जो पोल था जो डिफेक्ट गिनते थे उसको गिलाड का ऑफिस बनाया, और आखिर में जो शटर है ना वो उठा दिया था। वहाँ से एंट्री होती थी सुपरिटेंडेंट जेल की, टेरर। वहाँ से 5 सेट थे 5 सेट, 2.25 घंटे का प्ले, यू रिमेंबर, और पिन ड्रॉप साइलेंस। वो प्ले पकड़ लेता था, मेहनत बेहद हुई थी। यही हाल था, जो इसमें डिफेक्ट गिनते थे वो कर लीजिए। इसलिए ध्यान रखिए कि प्ले करते वक्त आप लोकेट करिए, सोचिए क्या, वो प्ले डिक्टेट कराएगा, सोचने की ज़रूरत है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर पाते, और जो समझदार होते हैं वो सब कुछ कर पाते हैं। अब मैं फ़िल्म की बात करूं तो जो फिल्म कर सकती है वो थिएटर नहीं कर सकता। उसमें एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है, वो थिएटर में नहीं होती। थिएटर में आदमी की पूरी बॉडी दिखाई देती है, पार्ट्स तो नहीं दिखाई देते। यू हैव टू एक्ट विद द होल बॉडी। यार फिल्म में क्लोजअप आ जाता है, फलानी चीज़ आ जाती है, तो वहाँ जाके फिल्म टेक्निक और एक्टिंग का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जो थिएटर है ये है मीडियम एक्टर का, और जो फिल्म है ये डायरेक्टर का है। मैं किसी हद तक इस चीज़ को मानता हूँ। रे साहब ने भी किया, रे साहब ने भी वो सारा कुछ वो स्केच बना लेते थे, और आपको ताज्जुब होगा कि 80% उनकी फिल्म तो स्क्रीन प्ले होता था। वो हार्डली 2 महीने लेते थे शूट करने के। एवरीथिंग वाज क्लियर। थिएटर में ये नहीं हो सकता।
थिएटर में महीना मेहनत ही होती। आजकल मुझे समझ नहीं आता कि 4 दिन में प्ले कैसे कर लेते हैं। डायलॉग नहीं याद होते यार। करैक्टर में घुसना कहते हैं, करैक्टर में घुस गया जी, घुस गया। कैसे घुसाओगे? याद करना पड़ता है। और यही खूबी है जो इसको जुदा करती है, जो लाइव होने का है एहसास कि जिंदा जागता आदमी है सामने। वो जो रिएक्शन है वो डिफरेंट है। फिल्म यू नो कि ये पैक हुई है, और उसमें यह एक बार आपने पैक कर ली, बाद में एडिट कर दो। प्ले में ये कभी नहीं हो सकता। नो परफॉर्मेंस, रिपीट परफॉर्मेंस इज सेम। आइदर इट विल बी डाउन जाएगी या अच्छी जाएगी, मैंने देखा है। क्योंकि ऑडियंस अलग होते हैं, यू होते हैं। फिर ऑडियंस जहाँ इंस्टेंटली आपको रिएक्शन देते हैं, उसमें जो लेसर बैलेंस्ड एक्टर होते हैं वो रिएक्शन का मार खा जाते हैं। जब उनको ताड़ी बनती है तो ओवर एक्टिंग शुरू हो जाते हैं। अगर किसी ने हूट किया तो वो लाइनें भूल चलना शुरू कर देते हैं। आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है। जो आपको पता है आप एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने सबसे मुझे ज़्यादा किसने सिखाया, जिन प्ले में हूट हुआ मैं, वो गलत सिलेक्शन से। अब 4 दिन जैसे विजय तेंदुलकर प्ले एग्जीबिशन श्रीनगर में, यहाँ 8 आने 4 आने में वो आते थे बड़क देखने, वहाँ वो प्ले किया। यकीन जानिए 50 मिनट का प्ले था, 55 मिनट्स के लिए हूटिंग होती थी। वो आए थे पान पून खा के माए और जिंदा नाच देखने। वो लड़की की ट्रेजेडी क्या समझते? मैं बेवकूफ़ था। उन्होंने जिन्होंने जगह सेलेक्ट करी थी हमें ये बताया ही नहीं था। मैंने बड़े सटल से आइडिया मारे हैं उसमें। वो लड़की की ट्रेजेडी वो पागल हो जाती है, इनबैलेंस हो जाती है, उसका जाप चला जाता है। वो कहती मेरी शादी भी हो गई, ये भी हो गया। वो उनके लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था, उनका कोई कसूर नहीं था। फिर मैंने इजाज़त ली, उन्हीं और प्ले एक रीढ़ की हड्डी थी, उसमें मैं दब के ओवर एक्टिंग कराया। और कश्मीरी में एक यहाँ श्राद्ध बड़ा मशहूर है, वो उसका कराया। और फिर उनको वो मिले, क्या नाम, अवार्ड मिले। जान छुई, जानी फाकर छुई है। फिर मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा अब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के ऑडियंस बुलाने दीजिए, टैगोर हॉल दीजिए। और वही हुआ। वो प्ले उनके लिए था। हर प्ले हर के लिए नहीं होता, मगर फिर भी आपको एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना पड़ता है। वो बड़ा मुश्किल है। थिएटर में कॉमन डिनोमिनेटर है, ये मैथमेटिकल टर्म है। कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढिए, क्योंकि ये ऑडियंस होमोजिस होती है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई शास्त्री जी थोड़े हैं सारे, या सारे विद्वान थोड़े हैं। मज़ा तो ये है कि जो प्ले करें वो सभी को समझ आए। कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढिए। अगर आपने वो नहीं ढूंढा तो फिर हवा में प्ले करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।